burying all the security barriers, stainless steel made its presence felt. It was also a historic moment to witness stainless steel reach the moon when Chandrayaan 3 made a soft landing on the lunar surface recently. With Sri Hemant Sharma ji by my side today, I wanted to also share my excitement about the first ever stainless steel industrial park in India we are making in Odisha. The idea of such a park was conceived with the vision to strengthen upstream and downstream industry linkages and empower indigenized manufacturing. And while it is expected to boost the metals production and demand in East India, it will also support the government's objective to catapult the iron and steel industry in the state to greater heights. As we celebrate these achievements, it is also important to sit up and take note of this. A greater use of stainless steel could curtail annual corrosion loss significantly, estimated at $100 billion. Hence, there is a lot more that needs to be done. In a bid to help scale up the corrosion movement in India and improve the life expectancy, safety and reliability of public infrastructure, Jindal Stainless signed an MOU with CII early this year. The primary focus of this MOU is training, capacity building and skill development with the support from government bodies and educational institutes. Both skill development and capacity building remain crucial to our commitment of creating a robust ecosystem for the stainless steel industry. We have also set up a Stainless Academy in 2021. This stems from the same vision, which includes fabricator training programs. That is why we are very proud to be associated with this event. Any event on steel, any event on stainless steel, mining, metallurgy, aluminium, ferroalloys, we never miss. Why? Because it gives us, in the government of Odisha, an opportunity to understand where the industry is leading to. What are the growth drivers of the industry? What are the challenges which this industry is facing? And then to frame our policies, our offerings for the industry appropriately. That is why today Odisha is the home of stainless steel industry in India, thanks to our partners like JSL, which is represented by Abhyuday ji here today. It was in the year 2003 when first the association of Jindal Stainless started with Odisha, and it has been 20 years since then. What is Abhyuday ji representing here today? Is he representing the Jindal Stainless, JSL? Is he representing the stainless steel industry? While he is actually representing both of them, more importantly, what he is representing here today is the new generation of industrialists in the making. He is the young face of the Indian industry, the new generation. He took over the mantle from his father and a great friend of Odisha, Shri Ratan ji, who in turn took the mantle from his father, Shri O.P. Jindal ji. So what you see in his presence today on the stage, along with us, Government of Odisha, along with you, is that the young generation, the new generation, the future of the Indian stainless steel industry. हुए हैं उड़ीसा सरकार के आप चीफ सेक्रेटरी हैं इसमें इंडस्ट्रीज में सर, आज ये जो कंसर्ट आप रखा गया उसके ऊपर आप ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2023 एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है स्टेनलेस स्टील के जो इंडस्ट्री है उसके लिए, और उड़ीसा राज्य की तरफ से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए क्योंकि उड़ीसा राज्य में स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, और स्टेनलेस स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं, उन प्रोडक्ट्स को डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील और स्टेनलेस स्टील की लगभग सभी इंडस्ट्रीज उड़ीसा में हैं। उनके लिए जो आगे के डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस एक्सपोजिशन में पार्टिसिपेट किया है, और हम लोगों ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है आज के दिन, जिसमें कि जो स्टेनलेस स्टील के डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं या स्टील के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं उन लोगों को 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी
₹4 per unit electricity for a period of 7 years, and there are other incentives also like low cost land, low cost of water and factory gate availability of water, power and connectivity. ये स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है। इसके अलावा उड़ीसा में एक जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क भी लॉन्च किया गया है। 275 एकर्स का ये पार्क है जहाँ पर डेवलप प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं और स्टेनलेस स्टील के जो इक्विपमेंट या जो आगे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर आज आपने बिजली को लेकर के और विभिन्न सुविधाओं को लेकर के आपने जो आज ब्रीफ दिया है उसके ऊपर यहाँ पर जो आए हुए हैं लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो इंडस्ट्री है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव युग से गुजर रही है और प्राइस मार्जिन्स के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि इंपोर्ट्स काफ़ी मात्रा में बाहर के देशों से हो रहे हैं। उनको अगर कॉम्पीट करना है, उनको अगर इस मार्केट में आगे बने रहना है या ग्रो करना है तो उनको राज्य सरकार की तरफ से सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या इलेक्ट्रिसिटी में डिस्काउंट या लैंड में डिस्काउंट या स्टेनलेस स्टील पार्क जो लॉन्च किया है उससे हमारा मानना है कि लगभग 7% उनको एबिटा मार्जिन में ग्रोथ मिल सकता है अगर वो उड़ीसा में अपना औद्योगिक इकाई लगाते हैं। तो ये सपोर्ट इंडस्ट्री को कॉम्पीट करने के लिए और आगे ग्रो करने के लिए बहुत मदद कर सकती है। सर जो ये आप उद्देश्य लेकर के आए हो उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से और जिंदल ने लगाया हुआ है, आने वाले समय में क्या उड़ीसा को कहाँ आप देखते हैं? आने वाले समय में हम देखते हैं कि जिससे आज भी उड़ीसा स्टील और मेटल इंडस्ट्री में लीडर है और ये लीडरशिप हमारी आगे और भी ज़्यादा ग्रो करेगी क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो स्टेनलेस स्टील और स्टील के जो नए प्लांट्स लग रहे हैं, न केवल जिंदल स्टेनलेस बल्कि रिमझिम इस्पात ने भी हमारे यहाँ इस समय एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री सेटअप की है और आगे भी जो फेरो एलॉय और फेरो क्रोम के जो प्लांट्स हैं जिनकी वजह से स्टेनलेस स्टील को और बढ़ावा मिलेगा और जो स्टेनलेस स्टील के डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, स्ट्रक्चरल्स हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में जो सब इक्विपमेंट लगता है वो है, रेलवे कोचेज़ हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, इन सब के लिए उड़ीसा राज्य में इस समय सबसे अच्छा अवसर है अपनी इंडस्ट्री लगाने का। सर मुख्यमंत्री जी का, नवीन पटनायक जी का जो विजन है साफ है उड़ीसा को आगे ले जाने का, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप कमिट ओनली व्हाट यू कैन डिलीवर and once you have committed you must deliver, and our government is very focused, our government is pro people governance, simultaneously we provide good scope for growth and development of the industry. थैंक यू। हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या? तो ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इवेंट है, पूरे इंडिया के लिए दिखा रहा है कि अब स्टेनलेस स्टील का टाइम आ गया है। अपनी मेटल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेटल है कंट्री के अंदर, उसके एप्लीकेशन जो पहले 30-40 साल पहले यूटेंसिल्स पे फोकस होते थे, अब हर एरिया में स्टेनलेस स्टील आप देख रहे हैं। रेलवे के अंदर, ऑटोमोटिव के अंदर, एबीसी सेक्टर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपके अब ब्रिजेस स्टेनलेस स्टील में बनने लगे हैं। ये सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक राइट डायरेक्शन है। तो अभी अपना ग्लोबल एक्सपो का जो फोकस है इज़ टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, बिकॉज ये मेटल में इतने सारे गुण हैं, जब लोगों को पता चलेगा तब इसकी यूसेज बढ़ती है। सर जिंदल लीड कर रहा है, जिंदल के बारे में सर बताइए कि किस तो अब हम इंडिया के तो सबसे नंबर 1 स्टेनलेस स्टील प्लेयर हैं। ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन कैपेसिटी है हमारी, ग्लोबली हम टॉप 10 में आते हैं। तो अब अपना फोकस है डोमेस्टिक, इतनी ग्रोथ जो हो रही है इंडिया के अंदर, इतना हमें डिमांड दिख रहा है इंडिया के अंदर, तो अलॉन्ग विद द कैपेसिटी हम भी ग्रो कर रहे हैं। हमारा फोकस तो हमेशा रहेगा कि हम मार्केट लीडर रहें, हम नया एवेन्यूज़ क्रिएट करते रहते हैं। जैसे मैंने अपने स्पीच में भी मैं बोलता हूँ स्टेनलेस एकेडमी, ये स्टेनलेस एकेडमी हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, हम फैब्रिकेटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस नहीं होता था स्टेनलेस स्टील के ऊपर। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जिंदल स्टेनलेस ने ये स्टेप उठाया है। सर आज उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में आपका ये वो है, और आने वाले समय में उड़ीसा में क्या इसका ग्रोथ देख रहे हैं आप? हमारा अब पूरा फोकस उड़ीसा का ही है। उड़ीसा इज़, जैसे हेमंत शर्मा जी भी बोल रहे थे, अब रॉ मटेरियल हब स्टील स्टेनलेस के लिए उड़ीसा है। फेरोक्रोम जो सबसे इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, वो उड़ीसा के अंदर ही है। तो इसके वजह से उड़ीसा हमारा मेन फोकस है। स्टार्टिंग हमने हरियाणा से किया था जहाँ से हम हैं वैसे, बट अब जो भी एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट आ रही है उड़ीसा में कर रहे हैं। उड़ीसा में हमारा 2 मिलियन टन स्टेनलेस स्टील प्लांट है और उसके पास ही हमने 300 एकड़ का स्टेनलेस स्टील डाउनस्ट्रीम पार्क अभी क्रिएट कर रहे हैं। उसके महत्व वो है कि इधर आपको फ्री लैंड नहीं,
आपको पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, सब्सिडाइज रेट में आपको मटेरियल मिलेगा, आपको आके बस अपना प्लांट मशीनरी सेटअप करना है एंड जस्ट इन टाइम मटेरियल मिलेगा ताकि आप फोकस कर सकें स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। जो आपको कंफर्ट है। सो जैसे आप जानते हैं हम लोग ये ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो हमने पहली बार 2022 में किया था। उसमें के पहले हमने काफ़ी रिसर्च किया टू अंडरस्टैंड कि ये है इंडस्ट्री जो आगे सब इनकी इतनी एप्लीकेशंस है तो इसकी महत्व क्या है हम समझे, और इसके हिसाब से हमने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री कि वो अपने को एक शोकेस कर सके, ग्लोबल लीडर्स को यहाँ पे बुला सके और अपने नॉलेज शेयरिंग कर सके। तो इसी का महत्व है, ग्लोबल स्टेनलेस स्टील का पूरा महत्व ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें सब लोग आके अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। जी, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो विशेष सुविधाएं दी हैं उसके ऊपर आप Odisha government is one of the most dynamic governments which we know, and because they are doing so much for the stainless steel industry, we really thought they should partner with stainless steel event, and that is how we have come together, and we are going to work together to see that more number of people go to Odisha and take the benefits from them. थैंक यू मैम।